Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to my new vlogs. I am passing through a beautiful place. Behind me, cow are grazing. There is a zigzag track behind me. An uncle is standing behind me. There is a big surprise for you. Please stay with me. No doubt one can look and imagines what is the most beautiful track behind me. The land of here is very fertile. Multiple various crops are to be grown here. For example, all food crops likely to be wheat, rice and sugar cane is cultivated here. Along with these crops, there is a beautiful track. It is to be highly famous for walk, for jogging and running. It go for a long distance as it could be easily seen. Along with this track, there are beautiful multifarious trees, plants. This is basically a forest, artificially forest grown by the forest departments. Mostly trees here planted are to be called safedas. On behind of me, there is a U-turn shape type of track, a zigzag track, as it is to be looked as we go way for a long distance. Now I am on the banks of a canal. The environment of here is very beautiful. It has no comparisons, as rotating by the camera one can observe, one can look. There is a beautiful track behind me. Multifarious types of trees are also to be planted here. One of the beautiful thing here is that the flowing water of canal is too much beautiful. It is too much attractive. This canal is also highly famous for fishing. It is to be used for irrigated purpose. This canal supply the water more than 5 to 6 districts. Sand of this canal is to be used for making homes, buildings, roads and so many for other purposes. Here is a question that why the directions of flowing water is from north to south. No doubt all the mountain ranges are located towards the north of Pakistan. Some mountain ranges are too much high. Their peaks remains covered with snow. There are huge pieces of ice over the peaks of these mountains. These huge pieces of ice are called glaciers. These glaciers are highly valuable. Had there been no glaciers, there would have been no water in Pakistan. So mountains are the birthplace for glaciers, and glaciers are also a source of supply water for us. हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारी जो खुशहाली है, हमारे जो एरियाज़ ये लहलाते खेत हैं, जो ये फसलें हैं खाने पीने की, जिसमें चावल है, rice is to be called the crop of water because it needs huge amounts of water. Similarly, sugar cane also needs huge volume of waters. Wheat is also needs a long volume of water. So it is due to the availability of these waters. हमारा पंजाब और सिंध में ये जो नहरी निज़ाम है ये बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, जो फसलें उग रही हैं खाने पीने की, और इसमें पाकिस्तान न सिर्फ सेल्फ सफिशेंट है बल्कि जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स की, वो हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को ना एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ जो दो छोटी नहरें हैं वो भी इस बड़ी नहर से निकलती हैं। जिस तरह ये आप मेरी बैक पे देखें तो ये एक छोटी सी नहर है जो इस बड़ी नहर से निकल रही है। तो हम इसको जब रोटेट करते हैं तो आपको शो करते हैं। ये बैक पे जाएँ जो सीधी जा रही है, ठीक है। ये एक छोटी नहर है। दूसरी नहर जो है इसके दूसरे बैंक्स पे है, वो यहाँ से दूर है काफ़ी, तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। Because time is about to be 4 o'clock, we will discuss about the people of here. People here are very honest, dedicated, fierce. यहाँ के लोग जो हैं वो अखलाक से भरे हुए हैं, चलते फिरते जो हैं वो मिलते हैं, सलाम करते हैं, हाल अहवाल जो हैं पूछते हैं, सादा हैं, मुखलिस हैं। ये मेरे पीछे जो हैं 3 आदमी खड़े हैं, सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। इनके पास शीप्स और गोट्स हैं। ये शीप्स और गोट्स जो हैं ये कैनाल वाटर से जो है ना ड्रिंकिंग और पानी पी रही हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये कितने मुखलिस हैं मुल्क के साथ, कौम के साथ, जो ये अपना किरदार इनफरादी तौर पे हैं वो अदा कर रहे हैं।
मुल्क की इकॉनमी के अंदर खुद तो ये इतने प्रॉस्पेरियस नहीं हैं, ना ही इनका ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल है, ना इतनी इनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये जो जिन पेशों से वाबस्ता हैं ये हमारे मुल्क और कौम के लिए बहुत अहम है। ये जो लाइफ स्टॉक है, ये शीप्स हैं, गोट्स हैं, ठीक है, इनसे सिस्टम जो है हमारा वो चला रहता है। गोश्त की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, मीट की। इनकी स्किन से जो है लेदर की जो जैकटें हैं, लेदर के जो शूज़ हैं वो बनते हैं। जब कुर्बानी का मौका होता है तो लोगों को बहुत सारा जो रोज़गार है वो इससे वाबस्ता होता है। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा है, सीन है, ठीक है। ये अगर आप पीछे बिहाइंड पे आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं शीप्स और गोट्स जो हैं बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से घास वगैरह जो कुदरती तौर पे उगती है वो ये खा लेती हैं और उससे जो है इनका पेट भर जाता है। शाम को ये जो दूध देती हैं उनसे इनका गुजारा हो जाता है। तो ये देखें कि ये गर्मी जो है इनको कितनी महसूस हो रही है। गर्मी से ये जो बेचारी हैं तड़प रही हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनको पहले पानी पिलाया जाए ठंडा या इनको नहलाया जाए। तो नाज़रीन आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, इंतहाई खूबसूरत। ये देखें कितना बच्चा खूबसूरत है। देखें ये भेड़ का छोटा सा बच्चा है जो अभी बर्न हुआ है। अभी देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। वेदर इज़ टू मच वार्म। यहाँ का जो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर है जो है अभी काफ़ी है, तो इसीलिए हाथ में ये पानी का जो है ये बंदोबस्त किया हुआ है। और पानी जो है वो ज़रूरी है। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज आवर ब्लड 70% जो ब्लड है हमारा उसके अंदर जो पानी है उसका शेयर है। नो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें आज जो मैं व्लॉग जो बनाना चाहता था वो ये है कि अबाउट मेज़। मेज़ को उर्दू में मक्की बोलते हैं। अब हमने डिस्कस ये करना है कि ओवरऑल कंडीशन जो है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, ज़मीन कैसी चाहिए। तो जो मेज़ है उसके लिए हमें ना मिक्स किस्म की जो मिक्स लैंड है, सॉइल है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल इज़ हाईली टू बी सूटेबल फॉर कल्टिवेटिंग मेज़। ओवर द इक्वेटर जो in between 50 degree of north and 50 degree of south, it is to be cultivated in worlds. It is to be grown in both season, warm season and cold season. Duration of maize is 90 to 95 days. In developed countries, in a 1 year it can be cultivated for thrice. In developing countries it can be cultivated for twice. Perhaps reason behind is that developed countries have modern tools. They are scientifically, technologically more developed comparatively to the developing countries. Their farmers are well educated. They have some trains. They have some skills. In developed countries, they are to be facilitated. उनको सब्सिडाइज़ किया जाता है। और हमारे यहाँ ओल्ड टूल्स हैं, फार्मर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, रिसर्च नहीं है, सीड्स की क्वालिटी नहीं है, जिस वजह से हम ना इसकी एक तो पर एकड़ जो पैदावार है वो कम होती है, दूसरा हम साल में इसको सिर्फ ट्वाइस लेते हैं कंपैरेटिवली टू डेवलप कंट्रीज़ के। नो वी टॉक अबाउट द हाइट ऑफ मेज़। यूजुअली इट अटेन द हाइट ऑफ 7 to 9 feet, but in most developed countries its height is more than 9 to 12 feet. Natural disasters are highly harmful for maize. For example, excessive rains, floods, cyclones, tornadoes are highly harmful for maize. In which areas it cannot be cultivated? So areas which are hilly, which are mountainous, areas which are uneven, unequals, areas which are plateaus, they are not to be famous for cultivating of maize. In Pakistan, most parts of Punjab and KPK is highly famous for cultivating maize. In some parts of Sindh, it is also be too cultivated. Hi guys, there is a beautiful scene behind me. Various cows are on the way to homes because this is the evening time. This is the time for go to their homes along with their boss. A beautiful scene. देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाकायदा तौर पर डिसिप्लिन में लाइन में ये लगी हुई हैं, अपने घरों को लौट रही हैं। म्यूज़िक जो है वो इंसान को खुशी देता है, सुकून देता है। लोग चाहे पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों तो उनके माइंड को ना सुकून मिलता है। दे ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड। ये देखें एक बच्चा है, थका हुआ है सारा दिन काम काज करके, तो इसने म्यूज़िक साथ में लगाया हुआ है ताकि ये बोर फील ना हो। नो वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेज़। इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग बेकरी मेड प्रोडक्ट्स है, कस्टर्ड पाउडर्स है,
इससे जो है रोटी बनाई जाती है। जो सर्दियों में साग के साथ मक्की की रोटी है, वो हमारा एक कल्चर है, बड़ी पसंद की जाती है। इसका ये वाला जो पार्ट्स है, जहाँ ये छल्ली जो है ऑब्टेन होती है, इसको स्टीम करके भी, पानी में जो बॉयल करके है वो भी खाया जाता है, और इसको कोयले के या लकड़ी के जो अंगारे हैं उसके ऊपर भून के भी खाया जाता है। और ये बड़ी अच्छी डाइट है। इसके खाने के बाद अगर 2 या 3 ये छलियाँ खा ली जाएं तो रोटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, बड़ी बैलेंस डाइट होती है। ये जो प्लांट का ग्रीन हिस्सा है, इसको यूजली जानवरों की खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इससे साइलेज भी बनाया जाता है, और ये जब हिस्सा खुश्क हो जाता है तो इससे बर्निंग पर्पज़ के लिए भी जो है ना आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी सब कॉन्टिनेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, दे आर सेल्फ सफिशेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मेज़। दे प्रोड्यूस मेज़ in large quantity. Extra quantity of maize is to be exported in various countries of the world. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये फसल पक कर इस तरह तैयार हो जाती है। इन दानों को बाकायदा तौर पे ग्राइंडिंग मशीन में बरीक कर दिया जाता है, तो जानवरों की खुराक के तौर पे भी इसको ना इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके जो दाने हैं उनका कलर देखें कितना है ब्यूटीफुल है। वंस अगेन बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सीनरी है। ये देखें, लोग जो हैं अपने घरों को जा रहे हैं, दे आर ऑन द वे टू देयर होम्स। ये अंकल हैं, बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, गाय रखी हुई हैं, सारा दिन अपनी गाय को चरागाहों में ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, ये जो मेरा व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।